Hello friends, I am Dr. Hemant Kumar Gupta and you can contact me for the online classes on the given contact number. We were studying motion of plane in the last lecture. So we first in this lecture we will study about the law of motion. So start with the chapter law of motion. So first we will talk about the what is the force. Force can be any type, push or pull, which produced motion in a body, which produce motion in a body. Basically force are classified into the two groups: contact forces and non-contact forces, or a distance forces. Okay, contact forces which act by an actual physical contact, such as the force of friction, force of tension in a string, force of reaction on a surface. Non-contact forces at a distance which act on a body from a distance, such as a gravitational forces, electrostatic forces and magnetic forces, which can be act upon the distance. Suppose that the force between the two equal charge and two opposite charge, the force between the two magnet, these are called the non-contact forces. Okay, so a force when applied on a body can produce the following three effects. What effect? It can change the size, it can change the it can change the size and shape of the body. It can stop a moving body, or can produce, if you apply the force in opposite direction of the motion, so the force can stop the body. It can change the speed of moving body, or can change the direction of the body also. And the next term is called the inertia. What is the inertia? Inertia means each object oppose the change of motion. Each object of oppose the change actually. Each object has a property by virtue of it which it always try to remain in this state of rest unless an external force is applied on it. This property of object is called the inertia. There are type of inertia: is the inertia of rest and inertia of motion. So what do you mean by the inertia of rest? Inertia of rest means what? If an object is at the rest, it will always remain stationary unless an external force is applied on it. This property of object is called the inertia of rest. This thus, in absence of an external force, a stationary object oppose a change in a state of rest. एग्जाम्पल क्या है इसके? ऑन सडन स्टार्ट ऑफ अ ट्रेन क्या होता है? जैसे ही बस स्टार्ट होती है या ट्रेन स्टार्ट होती है, तो हम क्या होते हैं? पीछे की तरफ झुक जाते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? पीछे तो इसलिए झुक जाते हैं हम कि जैसे ही बस स्टार्ट होती है तो हमारा जो नीचे वाला पार्ट है बॉडी का जो नीचे वाला पार्ट है वो किस में होता है? नीचे वाला पार्ट मूवमेंट में आ जाता है और ऊपर वाला पार्ट स्टेशनरी होता है. तो इसलिए हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण ऊपर वाला पार्ट जो है वो भी मूवमेंट में पीछे की तरफ झुकता है. ऑन स्ट्राइकिंग अ ट्री, जैसे ही हम ट्री को स्ट्राइक करेंगे, राइप फ्रूट जो है गेट डिटैच्ड एंड फॉल डाउन. राइप फ्रूट जो होंगे, पके हुए फल जो है वो नीचे गिर जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे. क्यों? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण ये भी है ना. ऑन बीटिंग अ ब्लैंकेट विद अ स्टिक, द डस्ट पार्टिकल गेट आइसोलेटेड. जब स्टिक से ब्लैंकेट को पीटेंगे तो उसमें से धूल मिट्टी जो है वो निकल जाएगा, है ना. उसी प्रकार से होता है इनर्शिया ऑफ मोशन. मतलब बॉडी अपोज करेगी अपनी प्रेजेंट स्टेट का, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में हो. इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, इट विल रिमेन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन with the same speed unless an external force is applied on it. This property of object is called the inertia of motion. Thus, in absence of an external force, a moving object opposes a change on its state of motion. इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे ही हम on stopping a moving train, suddenly the head of passenger in its lean forward. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा नीचे वाला पार्ट जो होता है बॉडी का वो मोशन में होता है और ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो स्टेशनरी होता है. अब लेकिन जैसे ही वो स्टॉप होगी ट्रेन, तो जो ऊपर का पार्ट है वो भी मोशन में आएगा.
कारण से वो मोशन में आने के लिए वो आगे की तरफ झुक जाता है। और इसी प्रकार से जब हम बस में, चलती बस से अगर आप कूदेंगे तो आपको सलाह दी जाती है क्या, कि आप बस की डायरेक्शन में दौड़िए, क्योंकि अगर बस की डायरेक्शन में आप दौड़ेंगे तो आप भी मोशन में हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे आप तो आपका ऊपर का पार्ट बॉडी का मोशन में नहीं है, तो वो उसको मोशन में लाने के लिए फिर आप गिर जाएंगे अगर ऐसा नहीं करेंगे तो, है ना। इसलिए सलाह दी जाती है कि आप जिस डायरेक्शन में से कूद रहे हैं उसी डायरेक्शन में दौड़ते रहें। चलिए नेक्स्ट है, एन एथलीट ऑफन रन्स बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप, ये भी आपका इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया। अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड बाय अ पर्सन इन अ मूविंग ट्रेन कम बैक्स इन हिज हैंड, ये भी हो गया आपका इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नाउ वी कम टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चलिए, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है तो इट विल रिमेन स्टेट ऑफ रेस्ट, or if it is in the state of motion it will remain moving in the same direction with the same velocity unless an external force is applied on it. It is called the Newton first law of motion. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन कर रहा है न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन? न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन बता रहा है कि प्रत्येक बॉडी में इनर्शिया होता है, प्रत्येक बॉडी में जड़त्व होता है। जड़त्व मतलब चढ़े रहने की क्षमता, अपने स्थान पर रहने की क्षमता, या वो अगर बॉडी स्थिर है तो स्थिर रहेगी और मूव कर रही है तो मूव रहना चाहेगी, है ना। चेंज नहीं चाहता कोई भी, इस पूरे यूनिवर्स में चेंज कोई भी अपने अपने आप से नहीं चाहता है ना। तो फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, इट इज इट्स एसआई यूनिट क्या होती है फोर्स का? न्यूटन होती है। इट्स डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन कर रहा है फोर्स का भी, है ना। जब तक आप फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो किस में रहेगी? स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी, अगर वो रेस्ट में है, और मोशन में रहेगी अगर मोशन में है। और इसका डायमेंशन फार्मूला होता है mlt-2। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसा होता है आपका? वेक्टर क्वांटिटी होता है हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट है मोमेंटम, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन द फिजिक्स ऑफ क्लास 11th लॉ ऑफ मोशन। So the product of mass of an object and its velocity is called the momentum of that object. Momentum is a vector quantity and it is represented by the letter P. Momentum is equal to m dot m cross या m multiply v या mv. Next example क्या हो गया? If the momentum of the two object of different mass are same, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं डिफरेंट मास के, उनका मोमेंटम क्या है? सेम है। तो क्या मतलब है इसका? कि वेलोसिटी ऑफ लाइटर ऑब्जेक्ट विल बी मोर, ज़्यादा होगी। जो हल्का है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द हैवियर ऑब्जेक्ट। इफ़ द टू ऑब्जेक्ट ऑफ द डिफरेंट मासेस, अगर अलग अलग मासेस के हैं एंड मोशन विद द सेम वेलोसिटी, एक ही वेलोसिटी में, तो मोमेंटम किसका होगा? हैवियर बॉडी का ऑब्जेक्ट का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द लाइटर ऑब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन हमको बता रहा है फोर्स के बारे में और इनर्शिया के बारे में, लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बता रहा है? कि डिस्क्राइब द मेजरमेंट ऑफ फोर्स। अभी उसने बताया था कि फोर्स क्या है फर्स्ट लॉ ने, लेकिन सेकंड लॉ क्या बताएगा? कैसे मेजर करते हैं, हाउ टू मेजर द फोर्स। तो इट इज स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट is directly proportional to the applied force applied on it, and the change in a momentum is in direction in which the force is applied. So consider the object of mass m moving with an initial velocity u, so the initial momentum is p1 is equals to mu. If a force f is applied on the object at the for the time delta t, due to which its final velocity become v, but the mass of the object remain constant, so the final momentum क्या हो गया? m v. The change in a momentum is p2 minus p1 is m v minus u m delta v, m delta v. Change in momentum क्या हो गया? m delta v, mass multiplied by velocity. चलिए, तो according to the Newton second law of motion, force is equal to the rate of change in momentum. So force is proportional to del p by del t. Force is equal to k into m dv by dt. p की जगह आप क्या रख सकते हैं? mv, तो m बाहर निकल आएगा
और ये आएगा डी वी बाई डी टी। डी वी बाई डी टी को आप कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। तो के इंटू एम ए, वेयर के इज कॉन्स्टेंट, द वैल्यू ऑफ विच डिपेंड ऑन द, किस पर डिपेंड कर रहा है, एफ एम और ए पर डिपेंड कर रहा है के का वैल्यू। तो इट इज़ ओनली वैलिड व्हेन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। द न्यूटन सेकंड लॉ इज ओनली वैलिड व्हेन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रिमेन कांस्टेंट। चलिए, तो क्या मूविंग ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट हो जाता है क्या? नहीं होता। तो मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए आपका न्यूटन सेकंड लॉ वर्क नहीं करेगा। समझा? तो डेरिवेशन ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ फ्रॉम द न्यूटन, डेरिवेशन ऑफ न्यूटन सॉरी फर्स्ट लॉ फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए। तो इट इज़ क्लियर दैट कि अगर फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन भी, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स जीरो होगा। इट मीन्स दैट no force is applied on object, it means unaccelerated, which imply that the object will either remain stationary or will remain moving with a constant velocity. The relation between the Newton and dyne कैसे निकालेंगे, 1 Newton is equal to 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको हम CGS में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोग्राम को आप ग्राम में कर देंगे तो 1000 ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर, तो हो जाएगा 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, डाइन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना हो गया, 10⁵ डाइन। चलिए, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट। मास और वेट में क्या डिफरेंस है? तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन्ड इन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ध्यान रखना, इट्स SI यूनिट इज किलोग्राम। Weight, the force by which earth attract an object towards it, mean it contains the gravitational acceleration, it is called the weight of the object. It is a vector quantity. It absolute unit is Newton, gravitational unit is kilogram watt, gravitational unit is kilogram watt. While in CGS system, while in CGS system the absolute unit is dyne and gravitational unit is ग्राम वाट। तो W इज इक्वल टू क्या आ गया, mg। ठीक है, अगला टर्म है, तो ये कैसा है आपका, वेट आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गया क्योंकि इसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंक्लूड हो गया है। इसमें क्या इंक्लूड हो गया आपका, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अगला है आपका इम्पल्स। क्या है, इम्पल्स। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल इज कॉल्ड द इम्पल्स ऑफ द फोर्स। मतलब फोर्स का प्रभाव, समय, कितने समय के लिए कितना फोर्स लगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। इफ ए कांस्टेंट फोर्स F is applied on an object for a time interval delta t, then impulse of force is equal to force into time interval, impulse of force is equal to F into delta t, F is equal to dp by dt। तो dp by dt into dt, dt से dt कट गया तो क्या आ गया, dp आ गया। तो इम्पल्स ऑफ फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स ऑफ फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम जो है दैट इज द इम्पल्स ऑफ फोर्स के बराबर है। एग्जाम्पल ऑफ इम्पल्स है, वेयर इम्पल्स इज इम्पार्टेड टू एन ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग द फोर्स ऑफ large magnitude for a short duration, such as batting a cricket ball, hammering a nail, है ना। तो हैमरिंग, बैटिंग क्रिकेट बॉल में क्या करते हो, बहुत फोर्स बहुत ज़्यादा आप लगा रहे हो लेकिन टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है। हैमरिंग जब नेल को कर रहे हो तो फोर्स बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं हम, टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है। वाइल कैचिंग ए बॉल हम क्या करते हैं, टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं कैचिंग, तो फोर्स कम हो जाता है। तो इम्पल्स को आपको कम करना है तो दोनों में से एक कम कर दीजिए, या फोर्स कम कर दीजिए या टाइम कम कर दीजिए। और बढ़ाना है तो दोनों में से एक बढ़ा दीजिए, टाइम बढ़ा दीजिए या फोर्स बढ़ा दीजिए। तो व्हेन द ग्लास वेसल्स फॉल ऑन द हार्ड फ्लोर दे ब्रेक। अब क्यों ऐसा क्यों होता है, हार्ड फ्लोर पे जब ग्लास गिर जाता है तो ब्रेक हो जाता है, क्यों, क्योंकि टाइम कम मिलता है, इम्पल्स बढ़ जाता है। और उसी को जब आप कारपेट पे सैंड पे गिराओगे तो ब्रेक नहीं होगा, टाइम बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा, इम्पल्स आपका कम हो जाएगा, है ना। तो इन ए
इन अ सर्कस आर्टिस्ट ऑफन जंप ऑन अ नेट और अ थिक कसन, ताकि उनको चोट ना लगे, इम्पल्स जो है वो कम हो जाए, है ना, इम्पल्स क्या हो जाए, कम हो जाए, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होता है, एम यू बाय डेल्टा टी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है एम यू बाय डेल्टा टी, क्योंकि एफ इंटू डेल्टा टी क्या हो गया, एफ इंटू डेल्टा टी बराबर एम यू हो गया, है ना। तो इम्पल्स आपका होता क्या है, फोर्स इंटू डेल्टा टी, ये तो होता है इम्पल्स, और ये फोर्स इंटू डेल्टा टी बराबर हो गया एम यू, तो फोर्स बराबर क्या हो गया, एम यू बाय डेल्टा टी। तो जितना डेल्टा टी आपका कम होगा, टाइम जो है आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये टाइम जितना कम होगा उतना फोर्स बढ़ जाएगा। इम्पल्स आपको बढ़ाना है, टाइम को कम कर दो, इम्पल्स बढ़ जाएगा। इम्पल्स कम करना है, टाइम को बढ़ा दो, इम्पल्स कम हो जाएगा, है ना। चलिए, इन अ बॉडी मूविंग विद एग्जांपल देख लेते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज स्टॉप्ड इन 0.1 सेकेंड by apply a force of 50 न्यूटन, find the initial momentum of the body। अब देखिए 50 न्यूटन आपको फोर्स दिया है, इम्पल्स दिया है आपको 0.1 सेकेंड, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, डेल्टा पी इज इक्वल टू फोर्स इंटू डेल्टा टी, तो 50 इंटू 0.1 इज 5 न्यूटन। तो आपको निकालना क्या है, इनिशियल मोमेंटम निकालना है ना, तो P2 माइनस P1, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम तो जीरो है ना, क्योंकि रोक ली जा रही है। तो P2 माइनस P1 इज 5 न्यूटन, तो P1 इज माइनस 5 न्यूटन। इसका मतलब क्या है, इनिशियल मोमेंटम जो था वो अपोजिट डायरेक्शन में था, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में था इनिशियल मोमेंटम। चलिए, दूसरा उदाहरण है, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 250 मीटर पर सेकेंड came to rest after penetrating 2.5 centimeter in the wall, calculate the force applied on the bullet by wall। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी दी है 250 मीटर पर सेकेंड, तो u बराबर हमने लिख लिया 250 पर मीटर पर सेकेंड। पेनिट्रेट कितना कर रहा है, 2.5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लिया तो 2.5 इंटू 10⁻²मीटर पेनिट्रेट करेगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तो v को जीरो कर दिया। m 10 ग्राम है तो किलोग्राम में 0.01 किलोग्राम हो गया। फिर हमने इसका आपका मोशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a s, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर जीरो हो गया, u स्क्वायर 250 इंटू 250 प्लस 2as, यहाँ से हमने a निकाल लिया, a आ गया, नेगेटिव में आया, इसका मतलब डीएसलेरेशन हो रहा है ना, क्योंकि डीएसलेरेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि रुक रहा है वो, जो बुलेट जो है वो आपका वो टकराने के बाद रुक रहा है। एक्सेलरेशन आ गया, F बराबर ma से हमने क्या निकाल लिया, फोर्स निकाल लिया, है ना। फोर्स ऑफ 2 kgf is applied on an object of mass 10 किलोग्राम, हाउ मच एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस्ड, g दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स हो गया 2 किलोग्राम F का, तो उसको 2 ग्राम 2gf किलोग्राम, 2 kgf है तो इसको 2g कर देंगे, f हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 9.8, तो 16 न्यूटन हो गया किलोग्राम, है ना, 19.6 न्यूटन हो गया। m हो गया 10 किलोग्राम, तो अब a बराबर f बाय m हो गया, f बाय m हुआ a बराबर, तो f कितना है, फोर्स है ना, तो ये आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। तो फोर्स क्या होता है, f बराबर ma होता है ना, f बराबर मास कितना था आपका, जो मास आया था वो 10 किलोग्राम था, और फोर्स कितना था आपका 20, तो ये 3 आ गया आपका एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन 3 आ गया, फोर्स ma से 5 इंटू 3 इज 15 न्यूटन आ गया आपका, 15 न्यूटन। चलिए, नेक्स्ट है आपका न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चलिए, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है नियम, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ to every reaction there is a equal and opposite reaction, to every action there is an equal and opposite reaction, मतलब प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है, यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं एक्शन है। ऐसे कि ये हमने एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बॉडी रखी हुई है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जो नीचे की तरफ इसका वेट लग रहा है W, तो F12 नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो F12 है, ऊपर की तरफ जो रिएक्शन है वो F21 है। चूँकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए हम लिख सकते हैं F12 बराबर माइनस ऑफ F21, या फिर हम क्या लिख सकते हैं F12 प्लस F21 बराबर 0।
While drawing a water from a well, if the rope breaks, the person fall backward. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम वाटर निकाल रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं कुएं से, तो बाल्टी का जो भार है वो नीचे की तरफ है, लेकिन अगर रस्सी टूटेगी एकदम से तो उसका भार का थ्रस्ट ऊपर की तरफ लगेगा, तो वो रिएक्शन लगेगा, तो वो रिएक्शन लगने के कारण से पर्सन कैसा हो जाएगा, धक्का लगेगा उसको ना। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ के उदाहरण है। स्विमिंग ऑफ ए पर्सन इन अ वाटर, अब तैरना है तो इसमें भी थर्ड लॉ लगेगा कि अगर आपको प्रतिक्रिया चाहिए तो आपको क्रिया करनी पड़ेगी। अगर आप उसमें हाथ पैर अपने हिलाएंगे तब वो आपको रिएक्शन करेगा, वो उल्टा फोर्स आपको देगा और तब आप पानी में रह पाएंगे। वॉकिंग ऑफ पर्सन ऑन द ग्राउंड, अब चलना भी जो हमारा है धरती पर, जब हम चलते हैं तो वो भी एंटी रिएक्शन होती है। जब हम चलते हैं तो वो फोर्स लगता है नीचे की तरफ, उसका जो रिएक्शन आता है उसके कारण हमें फ्रिक्शन मिलता है और उस फ्रिक्शन के कारण हम चल पाते हैं। जैसे कि जब एक व्यक्ति जब चलता है ग्राउंड पर तो उसका वेट नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, और ये रिएक्शन जा रहा है उसका, ये जो चल रहा है ना, ये उसका रिएक्शन है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड लग रहा है, तो इस फ्रिक्शन फोर्स के कारण वो चल पा रहा है। मोशन ऑफ रॉकेट में क्या होता है? मोशन ऑफ रॉकेट में होता है कि जब फ्यूल पीछे की तरफ से निकलता है रॉकेट के, तो रॉकेट आगे की तरफ बढ़ता है। हॉर्स कार्ट में भी ये होता है। हॉर्स कार्ट में भी क्या होता है? घोड़ा गाड़ी जिसे बोलते हैं, हॉर्स कार्ट। जंपिंग ऑफ पर्सन फ्रॉम ए बोट, ये भी ये होता है। जब बोट से पर्सन जंप करता है तो नाव पीछे की तरफ जाती है, क्योंकि उस पर थ्रस्ट लगता है। जब वो जंप करेगा तो आगे की तरफ थ्रस्ट लगेगा, वो पीछे की तरफ रिएक्शन हो जाएगा। रिएक्शन एंटी रिएक्शन, रिएक्शन एंटी रिएक्शन, these all are the examples of न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन का तीसरा नियम। सम ब्लॉक एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। अब ये ब्लॉक एग्जाम्पल्स एग्जाम में इन पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत आते हैं, इसलिए इनको आपको आना चाहिए। ये मान लीजिए एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो इस पर एक एक्शन लगाया गया है, एफ फोर्स लगाया गया है, तो रिएक्शन क्या आएगा? एफ डैश अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, है ना। इफ द ब्लॉक इज प्रेस्ड अगेंस्ट द वॉल बाय अप्लाइंग अ फोर्स एफ, द वॉल भी एक फोर्स लगाएगी, एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ रिएक्शन एफ डैश ऑन द सेम अमाउंट बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो एफ डैश इज इक्वल टू माइनस एफ एज resultant forces on the block is 0. Two blocks connected by a string, अगर दो ब्लॉक एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं, है ना, ए ब्लॉक और ये बी ब्लॉक है, ये ए ब्लॉक है। ए ब्लॉक का मास m1 है, बी ब्लॉक का मास m2 है। तो अगर ए ब्लॉक टेंशन दे रहा है T, तो बी ब्लॉक कोई टेंशन अपोजिट हो जाएगा बी ब्लॉक पर। तो जो फोर्स अगर यहाँ ए ब्लॉक पर m1 लग रहा है, तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा ए ब्लॉक पर? F माइनस टी बराबर m1 इंटू ए। और इस वाले दूसरे ब्लॉक पर क्या हो जाएगा? T, F और M ए होता है ना, तो फोर्स क्या लग रहा है इस पर? T, और T बराबर m2 ए हो जाएगा। तो F माइनस टी बराबर m1 ए और T बराबर m2 ए। सॉल्व कर लो दोनों इक्वेशन को, सॉल्व कर लेंगे तो हम T की जगह क्या रख देंगे? m2 ए। T बराबर आ जाएगा F डिवाइड बाय m1 प्लस m2, और T बराबर आ जाएगा, क्या आएगा? T बराबर आएगा यहाँ से m2 ए का वैल्यू हमने निकाला ये, तो ये हो गया F m2 बाय m1 प्लस m2। अब 3 ब्लॉक्स इन कॉन्टेक्ट, 3 ब्लॉक हैं। पहले ब्लॉक का मास m1 है, दूसरे ब्लॉक का मास m2 है, तीसरे ब्लॉक का मास m3 है। ए बी सी, 3 blocks A, B, C of masses m1, m2 and m3 respectively are placed in contact of each other. Let due to the actional force, हमने F अप्लाइड किया है ब्लॉक A पर, तो आपने F अप्लाइड किया ब्लॉक A पर, लेकिन तो द फोर्स ऑन द ब्लॉक B भी F1, वो क्या फोर्स होगा? B पर जो फोर्स होगा वो क्या होगा? F1 होगा। वो रिएक्शन ऑन ब्लॉक A इज आल्सो F1। तो सिमिलरली द फोर्स ऑन द ब्लॉक C इज F2 मान लीजिए, तो उसका जो रिएक्शन भी आएगा वो भी क्या होगा? वो भी आएगा F2। तो आप रिजल्टेंट फोर्स जब निकालेंगे ब्लॉक A पर, तो वो क्या हो जाएगा? F माइनस F1, क्योंकि ये जो फोर्स लगेगा, तो ये जो फोर्स लगा है यहाँ, तो वो पूरा फोर्स यहाँ लग जाएगा। फिर उसके बाद वही फोर्स यहाँ लगेगा, वही फोर्स यहाँ लगेगा, और वही फोर्स यहाँ लगेगा। तो पहले वाले ब्लॉक ए के लिए क्या फोर्स होंगे? F माइनस F1। दूसरे वाले फोर्स ब्लॉक के लिए, बिकॉज F1 ही जो है वो उसमें गया है, तो F1 बड़ा होगा, F2 छोटा होगा, बिकॉज F2 F1 से डेवलप्ड हुआ है, इसलिए F2 छोटा होगा। तो F1 माइनस M2, सॉरी F2 इज M2A एंड F2 इज इक्वल टू M3A। ये इनको सॉल्व कर लेंगे तो A का वैल्यू निकाल लेंगे और हम
फोर्स निकालेंगे। अब एक एग्जांपल है, इन अ गिवन फिगर 3 ब्लॉक ए बी सी आर कनेक्टेड टू ईच अदर by means of strings. The two objects are of masses 10 kilogram, 30 kilogram, 50 kilogram respectively, and they are pulled by a force 18 Newton on frictionless horizontal surface. Calculate the acceleration of the object निकालना है आपको। The tension T1 on the first string निकालना है। The tension T2 on the second string निकालना है। Given mass of object A is m1 is equal to 10 kilogram and B and C is 30 किलोग्राम एंड 50 किलोग्राम रेस्पेक्टिवली। फोर्स आपको दिया है 18 न्यूटन और फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट C T2 बराबर क्या हो जाएगा, आप निकालोगे तो T2 बराबर क्या होगा M2A M3A, T2 बराबर M3A। रिजल्टेंट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट B पे क्या होगा T1 माइनस T2। अब T2 माइनस T1 क्यों नहीं किया आपने, B पर क्या होगा T1 माइनस T2 बराबर M2A, है ना, क्योंकि T2 जो है वो डेवलप्ड हुआ है T1 से, तो T1 बड़ा है T2 से, इसलिए हमने क्या किया है T1 माइनस T2 किया है। और F माइनस T1, अब T1 माइनस F क्यों नहीं किया, ये बच्चों के दिमाग में जरूर आता है कि सर आपने T1 माइनस F क्यों नहीं किया। T1 माइनस F इसलिए नहीं किया कि F बड़ा है T1 छोटा है, क्योंकि T1 F से डेवलप्ड हुआ है, तो F माइनस, तो क्या हो जाएगा फिर आपका F माइनस T1 इज इक्वल टू M1A। तीनों को सॉल्व कर लेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो ये वैल्यू हो जाएगा, है ना, तीनों का वैल्यू रख देंगे तो F बराबर हो जाएगा M1A प्लस T1, यहाँ से F M1 प्लस M2 प्लस M3A, A का वैल्यू निकलेगा, फिर T1 M2 प्लस M3A 16 न्यूटन, फिर T2 M3A। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है, टू बॉडीज A एंड B ऑफ मास 5 किलोग्राम, ये 5 किलोग्राम and 10 kilogram respectively are suspended from a massless string passing over a frictionless pulley. Calculate the acceleration of the body and tension in the string. चलिए, तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन बॉडी B, रिजल्टेंट फोर्स ऑन बॉडी B क्या होगी, 10 नीचे की तरफ है तो 10G, ये MA हो रहा है, MA एक्चुअली है ना, 10G MA हो रहा है, ये वेट है, क्या है ये वेट, तो 10G माइनस टी, 10G माइनस टी, 10G बड़ा है क्योंकि 10G के कारण टेंशन डेवलप्ड हुआ है, टेंशन के कारण 10G नहीं है, 10G था तो टेंशन आया, तो 10G माइनस टी इज इक्वल टू 10A। और रिजल्टेंट फोर्स ऑन बॉडी A इज T माइनस 5G इज 5A, तो 5G इक्वल टू 15A, तो A इक्वल टू आ गया G बाय 3। तो इस तरीके से ये आपके कुछ टेंशन के क्वेश्चंस थे, आपके न्यूटन के थर्ड लॉ रिएक्शंस के क्वेश्चंस थे। अगला जो पार्ट है इसका हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसको, तब तक के लिए आप इसको पढ़िए। थैंक यू।